ભાઈ રાજુભાઈ કેમેરામાં મિત્રો પોતાનું ગોઠવીને તમે ગોઠવાઈ જાવ એટલે मंच पर विराजमान नवसारी जिल्लाना प्रभारी मंत्री અને રાજ્યના મહેસૂલ મંત્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગના મંત્રી, શહેરી વિકાસ મંત્રી આદરણીય આનંદીબેન પટેલ, મંત્રીમંડળના મારા સાથી શ્રીમાન ગણપતભાઈ વસાવા, આપણા જ વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય સદાય હસતા અને સૌને હસતા રાખતા ભાઈ શ્રી આરસી, લોકસભાના સભ્ય બેન જયશ્રીબેન, બેન જરદોશ, श्री सीआर पाटील, सर्वे आगवानो, स्वतंत्रतानी लड़तमां जेमनुं योगदान रह्युं छे एवा सर्वे महानुभावो, दांडीना वाला नागरिक भाईओ ने बहनों, आज गुजरातनो स्थापना दिवस है अने आपणे गुजरातना स्थापना दिवस ने एक आगवू महत्व आप्युं छे। कमनसीबे गुजरात अलग थया पछी अनेक सरकारों आई। गुजरात बनवाने कारणे एमने सरकार में बेसवानो मौको मळ्यो हतो, मंत्री मुख्यमंत्री बनवानो अवसर मळ्यो हतो, पण मोकळुं मन राखीने आ गुजरातनी स्थापना दिवसनुं गौरव करवुं जोईए। गुजरातना स्थापना माटे आंदोलन करनार जवानियों जे शहीद थया एमनुं पुण्य स्मरण करवुं जोईए। गुजरातनी लड़तमां लड़वैया हिंदू चाचाने याद करवा जोईए। पण ए बधुं करवामां कोण जाणे केम एमने राजकीय आड़सो नड़ती हती अने परिणामे 2001 सुधी गुजरात में क्यारे 1 मे गुजरात नो स्थापना दिवस है। प्रत्येक गुजराती ना मन में ये महागुजरातनी चळवळनुं स्मरण थाय, ये शहीदोनुं स्मरण थाय अने आ गुजरात जे रीते मेळव्युं छे ते गुजरातने वधुमां वधु उत्तम बनावीने आपणे कांई करवुं जोईए एवो भाव जागे। ए करवाने बदले समग्र इतिहासना प्रकरणने भूलावी देवानो प्रयास थयो हतो। आपणे एने उजागर करवानी कोशिश करी छे अने आ वखते ए अवसर नवसारीने आंगणे आव्यो छे अने ज्यारे नवसारी जिल्लामां राज्यनो स्थापना दिवस उजवातो होय, आखी सरकार गांधीनगर थी आवीने नवसारी जिल्लाना चरणों में बेसी जती होय आ नानी घटना अने आपणे आवा अवसरने विकास साथे जोड्यो छे, सफाई साथे जोड्यो छे।
વહીવટી તંત્રમાં ટીમ પેદા થાય એના માટેના પ્રયાસ તરીકે જોડ્યો છે, કશુંક સારું કરવાની નેમ સાથે જોડ્યો છે. ભૂતકાળમાં સરકારી કાર્યક્રમો એટલે રૂપિયાનો બરબાદી, રીબીનો કાપવી, દીવા સળગાવવા, ઉપદેશ આપવા, ફોટા પડાવવા, ચાલતા થવું. એના બદલે અમે એક આખી નવી કાર્ય સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે, એક નવી પરંપરા વિકસાવી છે, જેમાં દરેક અવસરને વિકાસ સાથે જોડવો, દરેક અવસરને જનભાગીદારી સાથે જોડવો, દરેક અવસરને વહીવટી તંત્રને તેજ ગતિથી દોડવા માટે કરવો, દરેક અવસરને નવા માનદંડ સુધી લઈ જવા માટેની મથામણ તરીકે કરવો. હવે એક નવી કાર્ય સંસ્કૃતિનો ઉદય થયો છે અને એના જ ભાગરૂપે આ ગુજરાતની સ્થાપના દિવસનો 1 મેનો અવસર સમગ્ર નવસારી જિલ્લાના વિકાસનો મંત્ર બની ગયો છે. અને જ્યારે નવસારીની અંદર અવસર ઉજવાતો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક જ છે એની શરૂઆત દાંડીથી થાય. અહીં દાંડીમાં રહેનારા ભાઈઓ જાણતા હશે, ગાંધીજીના ગયા પછી અહીં કોઈ ડોક્યું કરવા આવતું હતું, કોઈ પૂછતું હતું. એમના માટે ગાંધીનો ઉપયોગ જુદો હતો. કમનસીબી છે આ હકીકતને ત્યારે યાદ કરી ત્યારે પીડા થાય છે. સમગ્ર વિશ્વ જે મહાપુરુષના વિશે જોવા જાણવા આતુર હોવો જોઈએ, એના બદલે આપણે જાણે ભૂલાવી દેવામાં પડ્યા. અમે કોશિશ આદરી છે કે ઇતિહાસની પ્રત્યેક ઘટનાને, ઇતિહાસની ધરોહરને આવનારી પેઢીઓનું પ્રેરણા કેન્દ્ર બનાવવું. કેટલા લોકોને ખબર હશે કે કોઈ સૈયદના સાહેબ જેમણે આ રાષ્ટ્રની મૂડીને માટે પોતાનું પ્રિય એવું આ વિલા રાષ્ટ્રને ચરણે ધરી દીધું. કેટલા જાણતા. અને આજે જયારે દાંડી આવ્યો છે ત્યારે આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ સૈયદના સાહેબના દીર્ઘાયુષ્ય માટે. એમણે શતાબ્દી પૂરી કરી છે અને મેં એમને ખૂબ નિકટથી જોયા છે. મેં એમનો અત્યંત પ્રેમ પ્રાપ્ત કરેલો છે. 98-99 વર્ષની ઉંમરે પણ એમને મેં બાળકોને ભણાવતા જોયા છે. આ નાની વાત નથી. અને એ મહાપુરુષના ઉમદા કામ એમણે દાંડીની રોનક વધારી છે, પણ કોઈને યાદ કરવાની ઈચ્છા જ નથી. બધું ભૂલવાની દેવામાં પડ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, આજ મારે ગંભીર વાત પણ કરવી છે, દાંડીની ધરતી પરથી કરવી છે અને સમગ્ર દેશ સામે મૂકવી છે. અને એટલા માટે મારે થોડી વાત હિન્દીમાં કરવી છે, જેથી કરીને ટીવી વાળા મિત્રો એને દેશ આખામાં પહોંચાડે. कोयले में डूबी हुई दिल्ली की सरकार को, दिल्ली में बैठी हुई प्रधानमंत्री जी को, पूरी कांग्रेस की सल्तनत को मैं आज उन पर एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं. दांडी की पवित्र धरती से आरोप लगा रहा हूं. जिस दांडी की घटना के कारण हिंदुस्तान की आजादी के जंग को एक नया रंग रूप मिला था, नया सामर्थ्य मिला था, उस दांडी की पवित्र धरती से मैं दिल्ली की सल्तनत को ललकारना चाहता हूं.
2005 में दांडी यात्रा के 75 वर्ष का राजनीतिक लाभ लेने के हेतु दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम की योजना की थी, पदयात्राएं की थी। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता एक के बाद एक यहां तस्वीर निकलवाने के लिए चले आते थे और मेरी सरकार, गुजरात की जनता की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दांडी की यात्रा में आए हुए कांग्रेस के सभी नेताओं को राज्य के मेहमान के रूप में उनका स्वागत किया था। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा था, हर एक का सम्मान किया था, क्योंकि वो अवसर भारत को प्रेरणा देने वाला अवसर था। और उस समय प्रधानमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके महात्मा गांधी जिस मार्ग पर से दांडी यात्रा की थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक के पूरे मार्ग को हेरिटेज मार्ग की घोषणा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के मित्र गांधी के रास्ते पर चलने का दावा करते रहे हैं, लेकिन वो कभी भी गांधी के रास्ते पर नहीं चले। लेकिन आज मुझे और एक बात मेरी दुख के साथ कहनी है, कांग्रेस के मित्र तो गांधी के रास्ते पर नहीं चले, लेकिन अब कांग्रेस के मित्र गांधी को ही रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गांधी का मार्ग बदलने में लगे हुए हैं। क्या इतिहास की धरोहर को बदला जा सकता है? अगर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की घटना घटी है, तो आप उस कुरुक्षेत्र को नकार करके कहीं और जोड़ देंगे? अगर द्वारिका में कृष्ण थे तो आज आपको सुविधा नहीं है तो द्वारिका में कृष्ण नहीं थे, ये कहोगे? भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, प्रधानमंत्री ने जिस मार्ग को हेरिटेज मार्ग के रूप में घोषित किया था, अब भारत सरकार हमको चिट्ठी लिखती है कि ये जो गांधी जी जिस रास्ते पर गए थे, वहां पर अगर हेरिटेज रूट को बनाने जाते हैं तो जरा खर्च बढ़ जाता है। इसलिए आज जो बना बनाया राज्य का रास्ता है, भले गांधी जी वहां से गए न हो, लेकिन आप उसी को घोषित कर दो। मुझे बताइए दांडी के भाइयों बहनों, क्या मुझे इस पाप के भागीदार बनना चाहिए? क्या ये पाप होने देना चाहिए? क्या ये गांधी का रास्ता बदलने का हमें अधिकार है? क्या गांधी का रास्ता बदलना पाप है या नहीं है? ये दिल्ली की सल्तनत पाप करने जा रही है और मैं दांडी से उनको कहना चाहता हूं, आपने देश की जनता के सामने वादा किया था हेरिटेज रूट का, उसकी पाई पाई खर्च करके जिस धरती पर महात्मा गांधी के कदम पड़े थे, उसी धरती पर हेरिटेज रूट बनना चाहिए। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बयानबाजी से देश नहीं चलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, गांधी का रास्ता बदलने का कांग्रेस का प्रयास किसी भी हालत में देश के स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास से जुड़े हुए कोई भी नागरिक सहन नहीं कर सकता है। गुजरात की जनता सहन नहीं कर सकती है, गांधीवादी कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारी इस भावनाओं का आदर करें। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की सरकार महात्मा गांधी के इस महान कार्य को रुपयों और पैसों के तराजू से न तोले। इतिहास को रुपयों और पैसों के तराजू से नहीं तोला जा सकता। इतिहास पीढ़ियों की प्रेरणा होता है। इतिहास भविष्य के निर्माण की पक्की नींव होता है। उस नींव को खरोच भी ना आए, ये हम सबका कर्तव्य होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब दांडी की धरती पर आया हूं,
गुजरात के स्थापना दिवस का अवसर है, तब मैं मेरी अपने मन की पीड़ा कहे बिना रह नहीं सकता। और जैसे व्यक्ति के जीवन में नमक के बिना कोई सहारा नहीं है, वैसे ही आजादी के आंदोलन में दांडी के स्मरण के बिना कोई सहारा नहीं है। जीवन में जितना नमक का मूल्य है, उतना ही देश की आजादी के आंदोलन में दांडी घटना का महत्व है। इसको कम आंकना नहीं चाहिए। आइए भाइयों बहनों, देश की आजादी के लिए मरने वाले सभी महापुरुषों का स्मरण करें। गुजरात के निर्माण के लिए सीने पर गोलियां झेलने वाले उन वीर सपूतों को याद करें और भव्य समृद्ध गुजरात बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें। इसी एक शुभकामना के साथ मैं पूज्य बापू को, उनके उन महान प्रयासों को आज अंतःकरण पूर्वक प्रणाम करता हूं। और गुजरात के इस सपूत ने पूरे विश्व में हमें सीना तान करके जीना सिखाया है। हम उसके कर्जदार हैं। उस महापुरुष को सदा सर्वदा याद करें। इसी एक भावना के साथ आज गुजरात के स्थापना दिवस पर दांडी की इस धरती से विश्व भर में फैले हुए सभी गुजरात प्रेमी भाइयों बहनों को, सभी मेरे गुजरात के नागरिक भाइयों बहनों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।